Hello dear learners, welcome back to Abid Siksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Siksha. So let us begin. But before beginning, from the entire team of Abid Siksha, I would want to wish you guys a very Merry Christmas. And the year is going to end. It should end in a great note. And I would want to, extend wishes, all the hearty wishes from our side to your families, your loved ones and you. So this reminds us of the work that we need to do, like Jesus Christ came to this world and he did it. He did his good deeds. Like that also we have to follow the path of, integrity, honesty, and we should be, thankful for the life that we have got. So with this energy, I would want you guys to wish you again a very Merry Christmas, and let us begin with the analysis for the day. So there are some important news that we need to cover. First is regarding the appointment of governor. So we have to look into the process of appointing the governor. This is the first news. Second is very important, very interesting, is the Parker probe. Okay, Parker probe. We have to discuss about that. How Parker probe is a NASA's expedition to the sun, and how it is going to touch the corona of the sun. So this is very important and very interesting. This moment is also known as sun kissed moment, right? So this is very interesting. We have to discuss about that. And last is the Rupur nuclear project. India, Russia and Bangladesh had made this nuclear power project in collaboration with each other. So Rupur nuclear project is also in the news, so we have to look into that. So very important. All the three newses are today very important. Let us begin one by one. प्रेसिडेंट मुर्मू नेम्स अजय भल्ला मणिपुर गवर्नर. ओके, मणिपुर के गवर्नर जो है वो चेंज हो गए हैं, एंड अजय कुमार भल्ला विल बी द न्यू मणिपुर गवर्नर. ओके, so former union home secretary Ajay Bhalla has been appointed governor of Manipur in the latest national appointments and reshuffle by President Draupadi Murmu across 5 states. So there have been reshuffling in 5 states, and so many new governors have been appointed and some have been shifted from one place to another. So Ajay Kumar Bhalla would be the Shri Ajay Kumar Bhalla would be the governor of Manipur. Appointments include former Union Minister General V.K. Singh, retired Governor of Mizoram. Okay, he would be the new Governor of Mizoram. Retired General V.K. Singh ji, he would be the Governor of Mizoram. Kerala Governor would be Arif Muhammad Khan. Kerala's present Governor Arif Muhammad Khan would be the Governor of Bihar. Okay, Governor of Bihar, and also Rajendra Vishwanath Arlekar. Okay, he is the current, he would be the new governor of Kerala. So you would see Kerala ke governor has gone to Bihar, and Rajendra Shri Arif Muhammad Khan was the governor of Bihar, but he has been governor of Kerala, but he had been sent to Bihar. He has been sent to Bihar. So now Rajendra Vishwanath Arlekar would be the new governor of your Kerala, has named the new governor of Kerala. The incumbent governor of Mizoram, Hari Babu Kambhampati, has been appointed as the governor of Odisha. So governor of Odisha जो थे, governor of Odisha Raghuvar Das, he has resigned. So governor of Mizoram has been made the governor of Odisha. तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रीशफलिंग जो है वो देखने को आपको मिलेगा. जैसे कि सबसे पहले तो मणिपुर के न्यू जो है अपॉइंट हुए हैं. ठीक है, मणिपुर के न्यू अपॉइंट हुए हैं. मिजोरम के जो गवर्नर है उनको कहाँ भेज दिया गया है, ओडिशा भेज दिया गया है. ठीक है, केरला के जो गवर्नर थे उनको कहाँ भेज दिया गया है, बिहार भेज दिया गया है. केरला में न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए हैं. ठीक है, न्यू गवर्नर ऑफ दी ही हैज बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू गवर्नर ऑफ केरला. तो आपको देखने को मिलेगा कि रीशफलिंग जो है ये होते रहता है. वाई? अगेन दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड नॉट एन इलेक्टेड वन. ठीक है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस. सो यू कैन जस्ट लाइक IAS officers and other all India services, these are also constitutional posts. Governor is a constitutional post, and President of India can reshuffle, readjust them to कोई भी प्लेसेस, लाइक यहाँ से वो उनको कोई यूनियन टेरिटरी में भेज सकते हैं, कोई नया स्टेट में भी भेज सकते हैं. सो दिस रीशफलिंग कैन बी डन बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट and he is not
इलेक्टेड, ही इज एन ऑफिसर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो एक ऑफिसर है, ठीक है। तो गवर्नर क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट के, नॉमिनल हेड है, ठीक है। नॉमिनल हेड जो है ये कौन है, आपके स्टेट के हेड कौन है, ही इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट। द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज अडेप्टेड फ्रॉम कैनेडियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल से हमने अडेप्ट किया है। एज पर कन्वेंशन ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड सो दैट ही इज फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स। यहां पर क्या है, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है। देयर आर ओनली फ्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आपको एक गवर्नर होने के लिए, जैसे आपको सिटीजन होना होगा, आपको 35 ईयर्स ऑफ एज ही होना होगा। आई थिंक दीज आर ओनली द 2 रिक्वायरमेंट्स। बाकी कन्वेंशन के अनुसार क्या होना होगा कि आपको उस स्टेट का नहीं होना होगा ताकि आप लोकल पॉलिटिक्स से दूर रहे, ठीक है। और यहां पर क्या है, प्रेसिडेंट को कंसल्ट भी करना चाहिए जब वो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना चाहिए चीफ मिनिस्टर से जब वो अपॉइंट करे। बट बहुत समय ये क्या होता है कि ये दोनों जो क्राइटेरिया है मिस नहीं होता है, बिकॉज दीज आर मेयरली कन्वेंशन एंड नॉट रिटन इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए कभी कभी ये जो दोनों आपके जो क्राइटेरियाज है, जो कन्वेंशनल क्राइटेरियाज है, उसको ज्यादातर ओवरलुक कर दिया जाता है। समटाइम्स इट हैपेंस लाइक दैट, ठीक है। तो द गवर्नर इज नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अ स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट। तो यू नो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से इलेक्ट किया जाता है, एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको हम कैसे करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। लेकिन ना ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ना ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ये क्या है, ही इज अपॉइंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। तो ये अपॉइंटेड होते हैं, दीज आर अपॉइंटेड ऑफिसर्स, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर अपॉइंटेड, ये क्या है, ऑफिस को कब तक होल्ड करते हैं, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के तहत जो है ये ऑफिस को होल्ड करते हैं, एंड दे कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कभी भी उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। He is a nominee to the central government. He is a nominee. He is a nominee. He is a representative of central government to the state. He is a nominee to the central government. However, the Supreme Court in Hargovind Pant versus Raghukul Tilak case held that office of governor of a state is not an employment under central government. It is an independent constitutional office. क्योंकि बहुत बार देखने को मिलता है कि जो influence है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा दिखता है, एंड अगर प्रो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गवर्नर हुए तो उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है पड़ता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, मशीनरी को अच्छे से ढंग से चलने नहीं दिया जाता है। तो उसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है, एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल गवर्नर जो है हर स्टेट में रहे, ताकि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो ना हिला पाए, ठीक है। आर्टिकल 153 क्या कहता है, देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट, हर स्टेट में एक गवर्नर होने चाहिए। अ सिंगल पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 स्टेट से ज्यादा के लिए जो है ये अपॉइंट किया जा सकता है। गवर्नर जो है 2 या 2 स्टेट्स के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। रेकमेंड किन्होंने किया था, सरकारिया कमीशन ने इसका रिकमेंडेशन किया था। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इज अ नॉमिनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। The governor holds the supreme constitutional authority in the state and plays a central role in democratic framework. बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक पोजीशन रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनका रोल, ठीक है। आर्टिकल 157 स्पेसिफाइज, जस्ट लाइक आई सेड, देयर आर ओनली 2 क्वालिफिकेशन ऑफ टू बी अ गवर्नर। गवर्नर क्या, गवर्नर का सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशंस है। पहला होना चाहिए कि वो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब सिटीजन ऑफ इंडिया जरूरी नहीं कि अगर वो यूएस में पैदा हुए, इंडिया के सिटीजन बन गए तो वो गवर्नर नहीं बन सकते। अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो कैसे भी अपना सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं कि मतलब उनको यहाँ पे पैदा होना ही होगा। एनी पर्सन हु कोई दूसरे देश से आ रहे हैं, इंडिया में रुके, नाउ ही हैज बिकम अ सिटीजन, नाउ ही इज एलिजिबल टू रन अ कंटेस्ट फॉर योर गवर्नरशिप, ठीक है। तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला होना चाहिए। दूसरा कि ही मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, बस इतना ही 2 ही क्राइटेरिया है। और बाकी जो 2 कन्वेंशन हमने देखे वो कन्वेंशंस है, उनको कभी कभी फॉलो नहीं भी किया जा सकता है। पहला तो है कि दूसरे स्टेट के होने चाहिए। अगर आप देखें हमारे
स्टेट में भी दूसरे स्टेट के है, राइट. सो दूसरे स्टेट से होने चाहिए बिकॉज ही शुड बी फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स. एंड सेकेंड इज आपको कंसल्ट करना होगा टू प्रेसिडेंट मस्ट शुड कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. दीज आर टू कन्वेंशंस जिसको कभी कभी ओवरलुक भी किया जाता है. कन्वेंशंस यहाँ पे दिखा है ना, ओनली देर आर टू कन्वेंशंस एंड दो नॉट कंसिस्टेंटली फॉलोड लाइक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. इंडिपेंडेंट फ्रॉम लोकल इन्फ्लुएंस, इनका लोकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. दूसरा क्या है, कंसल्टेशन होना चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ. ये दो जो है कन्वेंशंस के बारे में हमने डिस्कस किया. ठीक है, तो होपफुली आपको गवर्नर वाला जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा. देयर हैव बीन रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम योर गवर्नर का पोर्शन, सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद द टॉपिक एंड यू मस्ट नो अबाउट इट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. Next is NASA spacecraft makes history. Okay, so you would see this picture, you would see it in the entire newspaper also, and also in the social media also. This picture is circulating wherein this is the Parker probe. This is the Parker probe and it is going to touch the corona of the sun, and corona is not that the virus, not the virus corona, balki the corona of the sun. There are 6 layers of sun and the outermost layer is the corona layer. ठीक है, सबसे 6 layers होते हैं. कोर होता है, फोटोएक्टिव जोन, photoactive zone, something like that, radiative zone, chromosphere, and last layer is corona. Okay, there are 6 layers, I'm forgetting the names, but there are 6 layers and our corona is the outermost layer of the sun. ठीक है, so ये क्या है, NASA spacecraft Parker solar probe. Parker solar probe, ये solar probe is a mission of NASA. ठीक है, this is the Parker solar probe. This is the spacecraft. It is a spacecraft made by NASA. और यहाँ पर क्या हुआ है कि क्रिसमस के इवनिंग पे ये बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ है. आज तक कोई भी आपका कोई भी जो मिशन है, कोई भी स्पेसक्राफ्ट है, सन के इतने ज़्यादा क्लोज नहीं गया है. दिस इज दी ओनली स्पेस मिशन जिसमें सन के हम इतने ज़्यादा क्लोज जा पाए हैं. दिस इज द क्लोजेस्ट दैट वी हैव एवर गॉट टू दी सन. ठीक है, एंड इट इज़ दी फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट दैट हैज़ एवर बीन बिल्ड. तो ये सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है, नॉट एयरक्राफ्ट बल्कि स्पेसक्राफ्ट, फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट है. ऐसा कहा जाता है कि ये जो है इतना फास्ट है कि आपको लंदन से न्यूयॉर्क आपको 30 सेकेंड में पहुंचा सकता है. दिस इज एज फास्ट एज इट कैन गेट. ठीक है, the spacecraft made its record-breaking flyby of the sun just 6.1 million kilometers, braving the blistering heat of our star's outer atmosphere, the corona. तो मतलब ये कितना पास है कि 150 मिलियन किलोमीटर्स है. ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है सन हमसे. 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है. ये पार्कर प्रोब पता है कितना किलोमीटर्स दूर है? मियरली 6.1 मिलियन किलोमीटर्स दूर. इट इज वेरी क्लोज टू द सन, नॉट एग्जैक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ द सन बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बर्न अवे ड्यू टू द हीट. तो उतना पास नहीं है, बट इट इज 6.1 मिलियन, बहुत ज़्यादा ही क्लोज है. ठीक है, सन के बहुत ज़्यादा ये क्लोज है. और यहाँ पर क्या है, वो ये लॉन्च किया गया था 2018 में. ये पूरे मिशन को ही 2018 में लॉन्च किया था ताकि हम सन को स्टडीज कर पाए, सन की मिस्ट्रीज को स्टडी कर पाए. अभी हम लोग देखेंगे कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में एंड द सोलर फ्लेयर्स जो कि पूरे हमारे जितने भी पावर ग्रिड्स है ना उसको पूरा डिसरप्ट कर देते हैं. तो इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे. ठीक है, तो पार्कर सोलर प्रोब जो है ये स्पेसक्राफ्ट है एंड ये क्या है, ये सन के सरफेस के पास गया है एंड 2 दिन के बाद दैट इज ऑन 28th of December ये हमें पिंग करेगा नेक्स्ट टाइम. पिछला पिंग जो है वो हुआ है लेकिन उसका नेक्स्ट पिंग जो है हमें मिलेगा ऑन 28th of December. ठीक है, तो ये बहुत हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज नो स्पेसक्राफ्ट इज एज फास्ट एज पार्कर प्रोब एंड नो स्पेसक्राफ्ट हैव एवर रीच टू द सन लाइक व्हाट पार्कर प्रोब हैव डिड. सो साइंटिस्ट्स आर वेरी एक्साइटेड एंड सो डज इज नासा. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. ठीक है, ये क्या है, पार्कर प्रोब के बारे में देखते हैं. ये क्या है, स्टडी करता है सन को और इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है. ये लॉन्च कब हुआ था? 2018 में लॉन्च किया गया था. कहाँ से? इसको फ्लोरिडा के स्टेशन से लॉन्च किया गया था. और ये क्या करता है, ऑर्बिट करता है सन को स्टडी करने के लिए ये इसको जो है भेजा गया था. द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्कर सोलर प्रोब आर टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ द सन्स कोरोना. सन का जो कोरोना है ये जहाँ पे द आउटर लेयर और इसमें क्या है उसका मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि हर 11 साल में इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरा ऑपोजिट हो जाता है, पूरा शिफ्ट हो जाता है. तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए और सोलर विंड जिनको हम सोलर फ्लेयर्स भी कहते हैं उसको भी स्टडी करने के लिए, क्योंकि इन सोलर फ्लेयर्स की वजह से क्या होता है, हमारा जो पूरा
ग्रिड जो है ना, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है, पावर ग्रिड्स है, रेडियो ग्रिड्स है, सारे कुछ डिसरप्ट हो जाते हैं। इवन तो बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन इन्हीं सोलर फ्लेयर्स के कारण हमारा जो पूरा पावर ग्रिड्स है वो पूरा डिसरप्ट हो जाता है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए दीज आर मिस्ट्रीज ऑफ दिस स्पेस, जिसको हम एक्सप्लोर और करना चाहते हैं। टू अचीव दिस द प्रोब विल मेक अ टोटल 24 क्लोज अप्रोचेस टू द सन ओवर द कोर्स ऑफ दिस मिशन। ठीक है, 24 बार ये मतलब ऐसे रन क्लोज अप्रोच जो है वो करेगा सन के पास, गेटिंग एज क्लोज एज 3.83 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन सरफेस। तो अभी तो 6.1 मिलियन माइल्स है, बट इट विल ट्राई कि वो 3.8 मतलब इसका भी हाफ जो है पहुंच जाए सन के पास। इट विल बी रियली रियली क्लोज। ठीक है, बस इतना ही कि क्रैश ना हो जाए, मतलब जल ना जाए बिल्कुल। ठीक है, विच इज 7 times क्लोजर टू एनी प्रीवियस स्पेस क्राफ्ट। पहले भी स्पेस क्राफ्ट जो है भेजे गए थे, बट इट इज दी क्लोजेस्ट अभी तक जब कोई भी पहुंच पाया है। ठीक है, December 21, 2021, the Parker probe reached the atmosphere of the sun. Since it has been looping around the sun, growing closer and closer that time and sending back tons of data about everything it encounters. तो ये बहुत सन के जो एटमॉस्फेयर है ये 2021 में पहुंच गया था और वहां से हमें डेटा कंटिन्यूसली भेज रहा है। ठीक है, सोलर फ्लेयर क्या है? सोलर फ्लेयर इज अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन ऑन द सन दैट हैपेंस व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन एंड ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड यूजुअली अबव सनस्पॉट्स आर सडनली रिलीज्ड। ठीक है, तो जो सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, लाइक मतलब कि वो एनर्जी होता है, दीज आर एनर्जीज जो कि मैग्नेटिक फील्ड के तरीके का एनर्जी है जो कि रिलीज होता है सन, और ये सन के जो आउटर लेयर वहाँ पे स्टोर्ड होता है और अचानक से उसको रिलीज करता है सन। तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। दीज आर ब्राइट एरियाज ऑन द सन। कुछ जगहों पे सन स्पॉट्स होता है, कुछ जगह ब्लैक है, थोड़ा बहुत ब्लैक आपको देखने को मिलेगा, उस जगह को हम सन स्पॉट्स कहते हैं। एंड कुछ जगह जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, दीज आर कॉल्ड दीज आर दी एरियाज जहाँ से सोलर फ्लेयर्स जो है वो इजेक्ट होता है। In a matter of just few minutes, they heat the material to many millions of degrees and produce a burst of radiation across the electromagnetic spectrum, including from radio waves to X rays to gamma rays. तो ये जो रिलीज करते हैं ना, सोलर फ्लेयर रिलीज होने की वजह से इतनी गर्मी प्रोड्यूस होती है, मतलब एक सेकेंड में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक गर्म कर देता है, एंड देन इट रिलीजेज आउट फ्रॉम दी सन्स लेयर। ठीक है, सन के पूरे लेयर से ये रिलीज होता है, एंड ये पूरे हर टाइप का इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हर टाइप का वेव जो है वो रिलीज होता है, फ्रॉम योर गामा रेज टू एक्स रेज टू विजिबल लाइट, सब कुछ जो है रिलीज होता है ड्यूरिंग दी सोलर फ्लेयर। ठीक है, दे इफेक्ट द रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन को ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। पावर ग्रिड को इस पर बहुत ज्यादा डिसरप्शन देखने को मिलता है। नेविगेशन सिग्नल हमारे जो है जो हम पूरा नेविगेशन का जो सिग्नल है एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंडेंजर्ड है, ऊपर में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं, और साथ ही स्पेसक्राफ्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है। और जैसे हमारे इंटरनेट कनेक्शन भी का समटाइम्स it has an effect on the internet sometimes, okay, not all the times, sometimes it interrupts with the internet connection also. तो ये सारे इश्यूज जो है ये सोलर फ्लेयर्स के साथ आता है, और इसी सोलर फ्लेयर को स्टडी करने के लिए हमने पार्कर प्रोब को नासा से भेजा था। सो इट इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग कि किस तरीके से ह्यूमन रेस इज गोइंग टू टच द सन, द इनडोमिटेबल एंड द बिगेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम का, मतलब उसको हम स्टडी करने के लिए हमने उनको भेजा है। सो दिस इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग, एंड हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, एंड हमें मतलब समझना चाहिए कि हमारा टेक्नोलॉजी कितना इंप्रूव हुआ है एंड हम कितना ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं डे बाई डे, ईयर बाई ईयर, हाउ वी आर ग्रोइंग एज ह्यूमन रेस। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर एवरी बिट ऑफ द एंटायर प्लानट एंड एंटायर यूनिवर्स को हम स्टडी करना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मतलब अभी जो 28 को पिंग आएगा उसमें भी हम देखेंगे कि क्या न्यूज़ आया है। होपफुली इट शुड सर्वाइव, द पार्कर प्रोब शुड सर्वाइव, होपफुली, रियली रियली होपफुल अबाउट दैट कि वो जल ना जाए बस। ठीक है, सो वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द रूपपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। ठीक है, रूपपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट न्यूज़ क्या है? रूपपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इज फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ बांग्लादेश, रशियाज रोज़ेटम। ठीक है, रोज़ेटम जो है ये आपके बांग्लादेश के साथ और इंडिया के साथ जो है मिलकर हमने रूपपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है इसको बनाया है। ठीक है, रशियन न्यूक्लियर मेजर रोज़ेटम on Tuesday said that Bangladesh Anti-Graft
Commission's remarks are on attempt to discredit the रूपपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश में एक एंटी ग्राफ्ट कमीशन, एक एंटी ग्राफ्ट का मतलब होता है करप्शन, ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड टू करप्शन। तो एक एंटी ग्राफ्ट कमीशन जो है उसको सेटअप किया गया है और उसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर रूपपुर में जो पूरा पावर प्लांट बनाया जा रहा है इसमें बहुत सारा करप्शन का जो खेल है। तो इसमें रोजाटम ने क्या कहा है कि ये बस एक अटेम्प्ट है टू डिस्क्रेडिट दी एफर्ट्स दैट हैज बीन डन, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है 2018 में लाया गया था। इट वाज बिटवीन बांग्लादेश, रशिया एंड इंडिया। रशिया का रोजाटम, इंडिया का NPCIL, आई वुड बिलीव टू से न्यूक्लियर पावर एनर्जी ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट। तो NPCIL जो है और यहाँ पे रोजाटम एंड बांग्लादेश जो है, ये तीनों मिलकर रूपपुर पे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का जो है इन्होंने पूरा गठन किया है। In this statement issued by the media, Rosatom reiterated that 12.65 billion Rupur project was transparent and it is ready to defend its case in the court of law। तो जो रूपपुर का प्रोजेक्ट बनाया है ना, इसमें क्या है, ऑलमोस्ट 12.65 बिलियन डॉलर्स जो है खर्चे हुए हैं एंड मतलब ट्रांसपेरेंसी से खर्चा हुआ है ऐसा उन्होंने कहा है एंड दे आर रेडी टू डिफेंड देयर केस। द यूजुअल डिस्टर्बेंस इन ढाका मॉस्को रिलेशन कोइंसाइडेड विद डीपनिंग एंगेजमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड द US ऑन ट्यूसडे। US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन स्पोक्स विद बांग्लादेश चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस एंड रीइटरेटेड द US सपोर्ट फॉर द चैलेंज फेसिंग बांग्लादेश। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मतलब गवर्नमेंट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वेरीज, ओके। नाउ शेख हसीना गवर्नमेंट वाज वेरी प्रो इंडिया, वेरी प्रो रशिया, ठीक है, दे हैड गुड रिलेशन विद कंट्रीज। सो यू वुड सी कि वो झलकता भी है, लाइक द रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट और बी इट दी अखोरा अगरतला रेलवे लिंक और बी इट दी एनी अदर रेलवे लिंक्स, ठीक है। बहुत कुछ मैत्री प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं उनके साथ कितने सारे। तो ये क्या दिखाता है कि एज दी एंटायर डायनामिक्स चेंज, जैसे ही डायनामिक्स जो पूरा चेंज हो जाता है उसके साथ ही जो है पूरा द न्यू गवर्नमेंट ट्राइज टू मेक इट ऑन इन दर ओन वे, उनके जो हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से वो करना चाहते हैं। लाइक इन दिस केस प्रोफेसर यूनुस इज वेरी क्लोज टू जो बाइडेन, वेरी क्लोज टू USA। सो नाउ बिकॉज दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट हैड बीन मेड विद द हेल्प ऑफ द रशियंस, नाउ दे आर क्वेश्चनिंग दिस कि किस तरीके से इसको बनाया गया है एंड बिकॉज दे आर वेरी एंटी इंडियंस ऑल्सो। तो ये इसके लिए भी और ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है दिया जा रहा है इन टू द रूपपुर प्रोजेक्ट, ठीक है। द स्टेटमेंट फ्रॉम रोजाटम came a day after the Anti-Corruption Commission of Bangladesh came out with a statement alleging that disposed Prime Minister Sheikh Hasina and her family members, including her niece Tulip Siddiq, an MP in the UK, laundered 900 million to offshore outs in Malaysia, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एंटी ग्राफ्ट कमीशन ने क्या कहा है कि 900 मिलियन डॉलर्स जो है ये शेख हसीना और उनके जो नीस है ट्यूलिप सिद्दीक, जो UK के MP भी है, उन्होंने इसको फंड्स को इम्बेजल किया है एंड बहुत सारा पैसा जो है यहाँ से चोरी किया है। The commission stated that it discovered around $5 billion का irregularities in the रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो कि 2011 से वहाँ पर है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है इरेगुलरिटी का यहाँ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है ये लगाया गया है, ठीक है। बांग्लादेश जो है ये 2 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है इंडिया और रशिया के साथ करने वाला है। रूपपुर इज वन ऑफ देम, ठीक है। सो रूपपुर में क्या है कि हम जो है ये इट इज़ नॉर्थ वेस्ट टू ढाका 160 किलोमीटर्स है एंड ये क्या है 2400 मेगावाट का ये क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम बनाएंगे। हमारे यूरेनियम को हम क्लीन करके उसको हम मतलब रेडी टू यूज़ करेंगे एंड उसके बाद उससे हम यूरेनियम से एनर्जी जो है जनरेट करेंगे, ठीक है। सो 2400 मेगावाट का ये रहेगा पूरा प्लांट और इसमें पूरा क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जो है इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। The project is a part of ambitious initiative to transform the developing country to a developed economy by 2041। तो बांग्लादेश का ये विजन था कि वो 2041 तक डेवलप बनना चाहते थे। As the electricity demand is rising because mind you Adanis were the biggest supplier of energy to Bangladesh। Adanis ने सबसे ज़्यादा सप्लाई किया था एनर्जी, but because of the Adani and issue and also India Bangladesh, so Adani has stopped them providing with the electricity जो त्रिपुरा के वाया होके जाता था एंड वेस्ट बंगाल की तरफ से भी जाया करता था, पर यहाँ से उसको अब बंद कर दिया गया। तो उसकी वजह से भी उनको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत जो है देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है ना ये
राइजिंग हो रहा हर साल दर साल जो है, क्योंकि इंप्रूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो इंक्रीज भी उतना ज़्यादा हो रहा है, 7% के राइज से हो रहा है। एंड यहाँ पर क्या है कि इसी के लिए क्लीन इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बांग्लादेश जो है वो एक्सपेंड करना चाहता है एंड डाइवर्सिफाई करना चाहता है और डीकार्बोनाइज खुद को करना चाहता है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। इसीलिए उसका ये बहुत ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा कि वो ये रूपपुर का जो प्रोजेक्ट है वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे फूड ऑफ दी थॉट ऑफ दी आर है, तो उसके वजह से ये न्यूक्लियर पावर जो है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला था। ठीक है, करेंटली नेचुरल गैस प्रोवाइड्स नियरली 80% ऑफ द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल गैस जो है ये 80% जो है उसका इलेक्ट्रिसिटी का पूरा बन रहा था, पर क्योंकि कितना मतलब बिकॉज इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सो वो बिकॉज देर आर सम एंड उसके वजह से एक इन्वायरमेंट को भी इशूज़ है, तो उसके कारण नाउ दे वे आर ऑल्सो ट्राइंग टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड रूपपुर वाज वन ऑफ देम। ठीक है, तो याद रखिएगा इट इज़ इन कोलैबोरेशन विद रशिया एंड इंडिया विद बांग्लादेश। ठीक है, ये 3 देश जो है इसमें कोलैबोरेट कर रहे थे, बट नाउ इसमें भी थोड़ा सा इरेगुलरिटीज जो है वो देखने को मिला। ठीक है, ऑल राइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.